So this chapter electricity is divided in two parts. First is about, we will study about the appliances which we use in our daily lives, in our houses, in our homes. Okay, the appliances which we have in our homes. Okay, the kind of power we use, the electricity we consume in our homes, how is it calculated, what is the unit of that electricity, all that we will study in the first part of the chapter. Okay, so that is household. In household, how do we use, how do we consume electricity? Okay, and the second part is about the static electricity. Static electricity. In this, we will learn what is positive charge, what is negative charge, how they interact with each other, what are the appliances in which we use static electricity, how do we come across static electricity in our daily lives. All these topics will be done in the second part of the chapter. Okay. So let's start. Now, see, first of all, to understand electricity, you should know a few terms. That is current. First, you should know what is current. Current is the flow of electrons. The flow of electrons. You know what an electron is? In chemistry, we have studied that in an atom, around the atom, there are electrons revolving. Okay, the electrons are revolving around an atom, and those electrons are exchanged. Okay, they transfer from one place to another, and chemical reactions takes place. In the same way, those same electrons, the electrons, when they flow in a wire, we say that current is flowing in a circuit. Okay. Then next is potential difference. What is potential difference? Okay, the potential means the ability of doing something. Okay, the ability of doing something is called as potential. And potential difference means on one side you have a lot of charge, on other side you have less charge. Let's say, for example, okay, I have 50 volts. V stands for volts. It is a unit of potential. Okay, 50 volts on one side, and on other side I have 20 volts. Okay, so what will happen? The energy, the energy will flow from this 50 volts to this 20 volts, because this is at higher potential, this is lower potential. So there will be a transfer taking place here. Okay, there will be a transfer taking place here. Okay, so this transfer will happen. See what will happen, ये 50 है, ये 20 है, तो थोड़े थोड़े charges यहाँ पे जाएंगे, जिससे this will come down, this will decrease, and this will increase. Okay, and this will continue till both are at equilibrium. Okay, जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक ये ट्रांसफर चलते रहेगा. ठीक है, तो ये फ्लो कब तक चलेगा? जब तक डिफरेंस है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. जब आप कोई सेल कनेक्ट करते हो किसी भी अप्लायंस में, दैट सेल गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस. एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा, जिस वजह से फ्लो होता है करंट का. ओके, जब तक ये डिफरेंस है तब तक करंट है. ओके, नाउ सी, in moving the charges from one place to another, from the charges when they are going from year to year, some amount of work is done. Some amount of work is done. किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है वहां पे, वर्क हो रहा है वहां पे. Okay, that work is nothing but the potential. Okay, so when we define potential difference, it is defined as the work done in moving a charge from one place to another, or we also say from one electrode to another electrode. What is electrode? See, in a cell, the cell which we use, any battery or a cell which you use, inside that cell there are two plates like this. ऐसे दो plates होते हैं. Okay, and these two plates are connected. One plate is positively charged, another plate is negatively charged. Okay, तो जो ट्रांसफर होता है वो इनके बीच में होता है, प्लस माइनस के. Okay, तो ये होता है एक सेल. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. These plates which are dipped, और यहाँ पे अंदर एक सोल्यूशन होता है.
उस सोल्यूशन के अंदर इन प्लेट्स को डिप करते हैं। तो जो बैटरी भी होती है आपकी, आप जो सेल यूज करते हो उसके अंदर देयर इज अ केमिकल, इनसाइड दैट केमिकल देयर आर 2 प्लेट्स व्हिच आर केप्ट, ओके, एंड दे help you in providing the potential difference. Okay, then certain formulas are important here. Work is Q into V. W is work, Q is charge, and V is potential difference. Okay, the symbol of potential difference is V. The symbol is V for potential difference. Okay, and the current is denoted by I. Current is denoted by I. So the formula for I is Q upon T. Q upon T means how much is flowing in a particular time. जितना ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ज्यादा करंट है, जितना कम चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ओके, और करंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ करंट, यूनिट इज एम्पियर्स. यूनिट इज एम्पियर. Okay, now see, the electricity which we use is not manufactured, is not made, is not generated near our houses. Okay, वो electricity कहाँ generate होगी? Maybe it is generated in a dam where there are turbines moving. So पानी ऊपर से flow हो रहा है, turbines घूम रहे हैं और electricity generate हो रही है. It is called as hydroelectricity. Okay, so वो दूर कहीं हो रहा है और वहां से हमारे पास आ रहा है. तो how is this electricity transmitted from one place to another? We will see that. So I will give you certain numbers. So first of all, there is a generating station. I'm giving you some extra information also. If you do not find it in your textbook, that means understand I'm giving you some extra information which will help you in understanding the chapter much better. Okay. So there is a generating station. जहाँ पे electricity generate होती है. Okay. And from that generating station, the electricity is transmitted from the grids. Okay. See. Now, first electricity comes into the generating station. Then it is transmitted further. I'm making a flow chart for you. Then there is a substation. We call it grid substation. There is a grid substation, and after the grid substation, the electricity is transmitted to the city station. Or you can say city substation. So हो रहा क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, कितनी जनरेट की? Let's say the electricity generated here is 11 kilowatt. 11 kilowatt electricity. किलो मतलब 11,000. 11 kilowatt मतलब 11,000 watt. Volt, sorry, this is V. V means volt. V stands for volts. So 11 kilovolts electricity generate की, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, इसे हम जनरेटिंग स्टेशन में थोड़ा सा रेज करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसे दूर तक ट्रांसमिट करना है. इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं जिससे एनर्जी का लॉस कम होगा. ओके, तो इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एंड इट इज मेड 132 kilovolt. It is made 132 kilovolt. This is called as, when you are increasing the energy here.
Now it is transmitted at this level. Okay. Now when it reaches the grid substation, it is again reduced. इसे वापस reduce करते हैं. कितना reduce कर देते हैं वापस original level पे? Let's say 11 kilovolt. Okay. पहले एक बार actually step by step होता है. First it is reduced to 33 kilovolt and then it is reduced to 11 kilovolt, and then it is further reduced to 220 volts final. Okay. See, पहले इतना था, इसे थोड़ा सा boost किया. Okay. बूस्ट करने के बाद इसे ट्रांसमिट किया, देन इसे स्लोली स्टेप बाय स्टेप कम किया, और हमारे घर पे कितना आता है? हमारे घर पे आएगा 220 वोल्ट्स. 220 वोल्ट्स विल रीच आवर हाउसेस. तो आपके घर पे जो स्विच है उस पे कितने वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी आती है? 220 वोल्ट्स. ओके. सो स्टार्टिंग में था 11 किलोवोल्ट. इट इज फर्स्ट लिफ्टेड, रेज्ड एंड मेड 132 किलोवोल्ट so that it can transmit long distance. दूर तक जाने के लिए इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, देन इसे वापस स्टेप बाय स्टेप कम किया. सो 132 को 33, 33 को 11, 11 को 220 volts. Okay, this is 11 kilovolt. Kilovolt means 11,000 volt. Okay, और उसे कम करके हमने कितना किया? 220 volts. This process of increasing is called as step up, and this process of decreasing is called as step down. Okay, यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती है या एनर्जी जनरेट नहीं होती है. जो है ना एनर्जी, ठीक है, उसी में थोड़ा चेंजेस करते हैं, उसके कंपोजिशन में थोड़ा चेंजेस करते हैं. ठीक है. सी दिस इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वोल्टेज एंड करंट. ओके. सो वोल्टेज और करंट के रेशियो को चेंज करते हैं. यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन 10th स्टैंडर्ड. देयर इज अ चैप्टर अगेन, इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस टेक्स प्लेस. सो इन दिस चैप्टर यू ओनली हैव टू, देयर इज ओनली अ इंट्रोडक्शन हियर दैट एनर्जी होती है, उसे स्टेप अप करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन स्टेप डाउन करते हैं. ठीक है. स्टेप अप क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. ओके. देन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ओके. हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इट कम्स, देयर इज अ केबल, there's a cable. The cable has 3 wires in it. See, this is a cable which is coming in your house. Okay, there are 3 wires in that cable. There are 3 wires. Those 3 wires are live, neutral and earth. Live wire, neutral wire and earth wire. Okay, live means L, neutral is N, earth is E. We will study in detail about these. Okay, so आपको सिर्फ इतना याद रखो अभी फिलहाल के लिए, that neutral and earth both are at zero potential. Okay, और live जो करंट एंट्री करता है ना हमारे घर में, वो लाइव से करता है. ठीक है. अगर आप लाइव वायर के कांटेक्ट में आ गए तो यू कैन गेट शॉक. ओके. सो ये लाइव से एंट्री होती है करंट की. ठीक है. जो वायर्स होते हैं उनका अलग अलग कलर भी होता है. ये जो वायर्स है लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, इनको स्पेशल कलर्स असाइन किए हुए हैं. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू से अबाउट द लाइव वायर, तो लाइव वायर इज गिवन द कलर रेड और ब्राउन. रेड या ब्राउन कलर का ही रखते हैं लाइव वायर को. ओके. सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई. जब कोई रिपेयर कर रहे हैं, वापस कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, री इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इट शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई द वायर्स. देन न्यूट्रल इज ब्लैक और लाइट ब्लू, एंड अर्थ इज ग्रीन और येलो. ओके. What is the commercial unit of electricity? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब, कमर्शियल मींस जब हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं. सी, हमारे घर पे लाइट का बिल आता है, मींस वी आर बाइंग इलेक्ट्रिसिटी. जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो उतना आपको पे करना पड़ता है. ठीक है. सो आप कैसे पे करते हो? कैसे वो कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की? वो कैलकुलेट करते हैं आपके मीटर से. ठीक है. और आपके मीटर में रीडिंग आती है. वो रीडिंग कैसे आती है? इट काउंट्स द अमाउंट ऑफ यूनिट्स
you used in a particular time. Okay, so वो यूनिट है किलोवाट आवर. किलोवाट आवर मींस कितने किलोवाट पावर आपने यूज किया. वॉट, सी जो वॉट होता है ना, वॉट इट इज द यूनिट ऑफ पावर. ओके, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर. तो आपने कितना किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वॉट इज 1 किलोवाट. ठीक है, रिमेंबर दिस, 1000 वॉट इज 1 किलोवाट. सो आपने कितना किलोवाट एनर्जी यूज किया. ठीक है, और आवर्स में, क्योंकि कितने आवर्स आपका, एवरी आवर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रेट कैलकुलेट होती है. ठीक है, एवरी आवर. सो आपके जो घर पे या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड इन किलोवाट आवर्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू से, जो आपका मीटर है, आपके मीटर पे रीडिंग लिखी हुई होगी. ओके, सो आपके मीटर पे कुछ भी रीडिंग हो सकती है. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ मीटर. पिक्चर दिया होगा कहीं मीटर का एक. सो उस मीटर में समझो आपने यूज किया 200 किलोवाट आवर. ओके, तो आपके जो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, उसका एक फिक्स चार्जेस होते हैं. ठीक है, जैसे 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट का चार्ज कितना है. जैसे आपकी कंपनी लेट्स से इट इज टेकिंग 7 रुपीज फॉर 1 किलोवाट आवर. योर कंपनी, योर सर्विस प्रोवाइडर. सो इफ यू हैव यूज्ड 200, so 200 into 7, your light bill will be 1400 rupees. Like this it is calculated. Okay, and who calculates this? Your meter, electric meter, which may be outside your house or on the ground floor. If you are living in a big building, on the ground floor there is a dedicated room in which there are meters. सबके मीटर होते हैं. देखो, I'll explain once again. समझो ये आपका घर है. ठीक है, तो आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. वो इलेक्ट्रिसिटी पहले जाएगी मीटर में, एंड मीटर से आपके घर में आती है. ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में एंटर कर रही है, ये मीटर उसका काउंट रखता है. ठीक है, तो समझो एक महीना हुआ और आपने यूज किया 200 किलोवाट आवर, मीटर ने काउंट किया. ठीक है, तो जब बिल बनेगा तो रेट है 1 किलोवाट आवर की रेट है 10 रुपीज. सो 1 किलोवाट आवर 10 रुपीज है, आपने यूज किया है 200 किलोवाट आवर, तो आपका बिल कितना बनेगा. योर बिल विल बी 200 into 10, 2000 रुपीज का बिल आएगा आपको. Okay, this is how the meter works. It is there in a meter room in your house. Then there is one important. My network is proper. I don't think so there is any problem here. The next topic is fuse. How does a fuse work and what is the fuse? Very important component. See, फ्यूज क्या करता है. आपको एक चीज फ्यूज समझने के लिए पहले एक चीज समझनी चाहिए. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मींस जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एनी वायर, एनी मीडियम, इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी. क्या होता है, अगर किसी वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट, थोड़ी सी हीट डेवलप होती है वहां पे. दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो हीट डेवलप होती है. अब वो जो वायर होता है, इट इज एबल टू विथस्टैंड दैट हीट. ओके, वायर ब्रेक नहीं हो जाता हीट की वजह से, इट इज एबल टू विथस्टैंड इट, तो इसलिए करंट इजीली फ्लो होते रहता है. ठीक है, लेकिन
लेट्स से यहाँ पे आपका फोन आपने चार्जिंग पे रखा है, लेट्स से दिस इज योर फोन, ओके, आपने चार्जिंग पे रखा है इसे, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम लाइव वायर, लेट्स से, ठीक है, यहाँ से करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है आपके अप्लायंस में, एंड फ्रॉम द अप्लायंस इट इज कमिंग बैक फ्रॉम न्यूट्रल, ओके, ऐसे साइकिल होती है, करंट आता है और घूम के जाता है, आता है घूम के जाता है, ऐसे चलते रहता है साइकिल, ठीक है। नाउ लेट्स से योर मोबाइल फोन रिक्वायर्स 1 milliampere current, 1 milliampere current, okay, so 1 milliampere current is flowing from here and your mobile is getting charged, but suddenly there's some problem happens here, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ मिसहैप हो गया, ऊपर नीचे हो गया, एंड सडनली लेट्स से 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया यहाँ से, ठीक है, तो ये 10 मिली एम्पियर करंट आपके फोन में जाएगा, और आपके फोन में, फोन की कैपेसिटी ही नहीं है इतना हाई करंट लेने की, तो क्या हो जाएगा, फोन की बैटरी डैमेज हो जाएगी इस हाई करंट की वजह से, ओके, तो हाउ टू स्टॉप दिस हाई करंट, इस करंट को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में यहाँ पे एक फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज, वो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज के अंदर नॉर्मल वायर नहीं होता, एक स्पेशल वायर होता है, ओके, स्पेशल वायर विच इज मेड अप ऑफ lead and tin, okay, that special wire, see इसके अंदर एक स्पेशल वायर होता है ऐसे, you can see this wire, और ये वायर की स्पेशलिटी क्या है कि जब ये ज्यादा हीट होता है तो ये मेल्ट हो जाता है, when it's heat up to a certain point ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो गया मतलब कनेक्शन टूट गया, तो क्या होता है, लेट्स से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में, तो 1 मिली एम्पियर करंट से दिस वायर विल नॉट रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा हीट नहीं होगा, ये नॉर्मल हीट होगा और करंट फ्लो हो रहा है, बट अगर 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर ज्यादा करंट आ गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है वायर का, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, और ये मेल्ट होता है तो आगे करंट फ्लो नहीं हो सकता, आगे करंट फ्लो अगर नहीं हो सकता तो आपका मोबाइल फोन बच गया, आपका मोबाइल फोन डैमेज नहीं हुआ, तो इस फ्यूज ने क्या किया, ये फ्यूज खुद डैमेज हो गया। नाउ फ्यूज इज नॉट एक्सपेंसिव, छोटा सा फ्यूज होता है वो बहुत काफी चीप होता है, ठीक है, मतलब ये छोटे वाले फ्यूज, वैसे तो आजकल फ्यूज यूज करना बंद कर दिया, आजकल स्पेशल चीज यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, MCB, जिसमें ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है बटन, आपने घर पे देखा होगा, देयर इज शॉर्ट सर्किट, आपका जो मेन सर्किट बॉक्स होता है वहां पे ऑटोमेटिकली बटन ऊपर हो जाता है, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट यूज फ्यूज एनीमोर, बट जब फ्यूज होता था यूज, तो उसमें क्या होता है, इस फ्यूज को सिर्फ निकालो और नया फ्यूज यहाँ पे लग के रिप्लेस कर दो, ठीक है, 5-10 रुपीज में आपको फ्यूज मिल जाएगा, तो आपका मोबाइल फोन तो बच गया, आपकी बैटरी तो बच गई, तो समझ में आया फ्यूज ने क्या किया, हाई करंट से, हाई वोल्टेज से आपके अप्लायंस को बचाया, दैट इज फ्यूज, okay, so fuse has low melting points, when it reaches a particular temperature it melts, okay. Now latest device which has replaced fuse is MCBs. Just a second. Now what are MCBs? MCBs में there is, MCBs में क्या होता है कि एक स्पेशल सिस्टम होता है, when the current increases up to a certain level it automatically turns it off, ठीक है, उसका वर्किंग आपको नहीं है अभी, एग्जाम यू जस्ट हैव इंट्रोडक्शन दैट एमसीबी क्या होता है, जस्ट फ्यूज को रिप्लेस किया है, एंड एमसीबी में जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो एकदम फास्ट विद इन मिली सेकेंड्स एमसीबी क्या करता है, स्विच को ऑफ कर देता है, तो आपके सारे घर के अप्लायंस सेफ, ठीक है, फिर आप वापस जाओ, उस स्विच को ऊपर करो, अगेन एवरीथिंग विल वर्क नॉर्मली,
तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम. ओके, आपके बुक में उसका फोटो भी होगा एमसीबी का. जस्ट टेक अ लुक एट इट. आपको और आपको पता भी होगा, आपके घर में भी एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है. व्हेन यू ओपन इट, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस होते हैं और उसमें एक बड़ा स्विच होता है, दैट इज द मेन स्विच आपके घर का. ओके, दैट इज एमसीबी. काम सेम है एमसीबी का भी, शॉर्ट सर्किट से बचाना. ठीक है, हमारे अप्लायंसेस को सेफ रखना, दैट इज द जॉब. Now I will make you understand how a circuit looks like and how it works. Let's say this is wire. इस वायर पे मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया. ओके, फिर यहाँ पे मैंने एक सेल रखा है, सेल. There is a switch here. Okay, I'll explain you each and everything here. कि स्विच कैसे काम करेगा, सेल कैसे काम करेगा. ओके, चलिए, दिस इज अ वायर. ये सेल, सी सेल में दो लाइंस बनाते हैं हम. This bigger line indicates that there is a positive charge here. The smaller line indicates there is negative charge. This is a cell. Okay, this thing which I have made here is a switch, or you can say key. Key भी बोलते हैं इसे, switch बोलते हैं या key बोलते हैं. ठीक है, और this is a bulb, the appliance. Okay, अब होगा क्या, यहाँ पे देखो ये स्विच क्लोज्ड है. क्लोज मतलब ये कनेक्टेड है इससे. ठीक है, स्विच क्लोज्ड है मतलब सर्किट चालू है. ठीक है, तो अब जो करंट है पॉजिटिव से फ्लो होगा. इट विल गो लाइक दिस. करंट विल फ्लो लाइक दिस. इट विल गो इन द अप्लायंस, इस बल्ब में जाएगा. ठीक है, इट विल गेट यूज्ड अप एंड इट विल कम बैक टू नेगेटिव. ये ऐसे करंट फ्लो होते रहेगा, और जब करंट फ्लो होते रहेगा तो आपका बल्ब ऑन होगा, आपको लाइट आएगी. ठीक है, दिस इज हाउ. अगर आप एक वायर लोगे, उसमें एक बल्ब कनेक्ट करोगे, एक सेल कनेक्ट करोगे, तो बल्ब में से लाइट आएगी. दैट इज दिस सर्किट. ओके, समझो अगर मैंने स्विच को ओपन कर दिया ऐसे, स्विच ओपन कर दिया, तो अब ये करंट जो यहाँ से जा रहा है वो वापस नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे अटक गया. ठीक है, आगे नहीं जा सकता, तो सर्किट इज इनकम्प्लीट. सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो नाउ करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द सर्किट. ओके, अगर समझो ये स्विच क्लोज्ड है और कहीं से वायर टूटा हुआ है, वायर अगर यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, देयर इज अ डिस्कनेक्शन हियर, तो भी करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट. पूरा बंद नहीं है. ठीक है, पूरा बंद होना जरूरी है सर्किट का. आप दो बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो. समझो आपने यहाँ पे एक और बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों बल्ब में से लाइट आएगी. आप अगर स्विच को ओपन कर दोगे, सी स्विच को ओपन करना, स्विच को ओपन करना मतलब ऐसे ओपन कर देना, मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता. ठीक है, स्विच क्लोज्ड होगा तो ही करंट फ्लो होगा. You have to understand this. Okay, only then the bulb will lit. You can see light coming from the bulb. There are some different questions coming here that see, कोई पूछ रहा है पेट्रोल पंप्स पे मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज करना चाहिए. बिकॉज मोबाइल फोन से रेडिएशंस आते हैं and that radiations can come in contact with the fuel which is present in the petrol pump station and they can react with each other. Okay, so इसलिए मना करते हैं आपको. आपके मोबाइल फोन्स की चार्जिंग 100%, अगर आपका फोन चार्ज हो चुका है तो इट इज बेटर टू रिमूव इट. बिकॉज क्या होता है, आपकी बैटरी की साइकिल्स होती है, तो अगर आपने 100% चार्ज कर दिया है तो रिमूव इट. ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने 100% चार्ज कर दिया है, स्टिल आपने कनेक्शन मेंटेन रखा है, आपके चार्जर का बटन ऑन है, तो आपका फोन हीट अप होगा. ऐसे नहीं होता, हीट अप नहीं होगा. बट व्हाट विल हैपन,
थोड़ी सी बैटरी कम होगी वो उसे वापस चार्ज करेगा, थोड़ी सी बैटरी कम होगी वापस चार्ज करेगा। तो ये बार बार चार्ज करने की वजह से आपकी बैटरी खराब हो सकती है। इसीलिए वंस द मोबाइल फोन इज चार्ज्ड फॉर 100%, रिमूव इट, यूज इट टिल इट रीचेस 30, 20, 10% एंड देन अगेन चार्ज इट। बिकॉज वो साइकिल्स जो होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे योर फोन कैन चार्ज फॉर 1 लाख साइकिल्स, ओके, ऐसी साइकिल्स फिक्स्ड होती है हर एक बैटरीज की, ठीक है। 50,000 टाइम्स यू कैन चार्ज योर फोन। तो अगर आपने 50,000 चार्ज बार बार चार्ज करते गए, आप 5% चार्ज किया, 10% चार्ज किया, निकाल दिया, तो वो आपकी साइकिल्स कम हो जाती है, जिससे आपका फोन की बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। अभी आपका जो घर पे लाइव और न्यूट्रल वायर आता है, लाइव न्यूट्रल, वो पहले आपके मेन स्विच में जाता है। मेन स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर वो मेन स्विच में से यहाँ से कनेक्शन आता है, समझो आपके बेडरूम, आपके हॉल में जाएगा, आपके बेडरूम में जाएगा, अलग अलग जगह पे कनेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। दैट विल डिपेंड। समझो आपके ये बेडरूम है, तो आपके बेडरूम में यहाँ पे एक स्विच होगा, ओके। और फिर यहाँ पे समझो आपने फैन लगाया है, तो दिस इज अ फैन, देयर इज अ लाइट, तो देयर इज अ ट्यूब लाइट हियर, ठीक है। फिर आपने हॉल है, तो ये हॉल में वापस एक स्विच है, और उस स्विच से यहाँ पे एक फैन है हॉल में भी, देन देयर इज अ बल्ब हियर आल्सो। देन आपके किचन में समझो ये वायर जाएगी यहाँ से, तो किचन में वापस स्विच, देन लेट्स से देयर इज अ फ्रिज, यू हैव कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर। सो ऐसे कनेक्शंस, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं हमारे घर में, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। No, Tanish, it is not true. See, next, what is earthing? Let's understand what is earthing. Earthing of a appliance क्या होता है? See, let's say this is your appliance made of some metal, ठीक है?
मेटल से बना हुआ है। सी मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। कॉपर इज ऑल्सो मेटल, वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ओके। और इसके अंदर समझो वायर्स है, ऐसे लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, देयर इज सम सर्किट इनसाइड इट, ओके। जैसे आपके समझो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ ड्यू टू सम मिसकनेक्शन, ठीक है, या वेयर एंड टेयर की वजह से, ये जो लाइव वायर है आपका, जहां से जिसमें से करंट जा रहा है, ये ब्रेक हो गए। अगर समझो इस मेटल के बॉडी पे टच हो गया, ये जो लाइव वायर है, ये आपके जो अप्लायंस है उसके बॉडी को टच हो गया, तो क्या होगा? जो करंट आ रहा है यहाँ से, द करंट व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम द लाइव वायर will enter the body of the appliance and it will start flowing in the body of the appliance, बरोबर? क्योंकि वायर टच हो गया है मेटल को, तो इसके अप्लायंस में इंसुलेशन नहीं होगा प्रॉपर। इंसुलेशन समझते हो? इंसुलेशन जो वायर होता है, जो वायर का ब्लू कलर होता है, तो ब्लू कलर के अंदर कॉपर वायर होता है, बाहर का जो ब्लू कलर है ना, दैट इज इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन समझो वो टूट गया, कहीं से निकल गया किसी चीज की वजह से, या वेयर एंड टेयर की वजह से, बहुत टाइम तक होने के बाद कभी कभी वो खराब हो जाता है। तो अगर वो कनेक्शन में आ गया मेटल से, तो यहाँ पे से करंट फ्लो हो रहा है। अभी अगर आपने इस अप्लायंस को टच किया तो यू विल गेट अ शॉक, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट को आपके बॉडी में घुसने का रास्ता मिल गया, कनेक्शन में आ गया, तो आपके बॉडी से करंट फ्लो होगा एंड इट विल डैमेज योर बॉडी एंड यू मे इवन गेट अ हार्ट अटैक। अगर कुछ ज्यादा टाइम तक आपको वो शॉक लगते रहा, तो यू कैन इवन गेट अ हार्ट अटैक, ओके। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिवेंट दैट। अगर बॉडी में करंट आ गया, अप्लायंस के बॉडी में करंट आ गया, तो कुछ ऐसा कनेक्शन करते हैं जिससे वो करंट बॉडी से निकल जाए। तो क्या करें? तो दैट कनेक्शन इज अर्थिंग। क्या करते हैं हम कि ये जो बॉडी होती है ना, मेटल बॉडी, इसके यहाँ से एक वायर लेते हैं और उसको अर्थ में डालते हैं। अर्थ में डालना मतलब सबके घर में अर्थ वायर होता है, ठीक है। सबके फ्लैट्स में, सबके घर में कनेक्शन में अर्थ वायर का कनेक्शन होता है, ठीक है। और उन सब कनेक्शन को मिलके उस बिल्डिंग में जमीन के नीचे डालते हैं, ठीक है, एकदम नीचे। तो सारा जो एक्स्ट्रा करंट है, समझो अगर अप्लायंस में करंट कभी फ्लो हो गया, तो वो एक्स्ट्रा करंट है वो सीधा जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है। एंड अर्थ हैज द कैपेसिटी टू होल्ड दैट करंट। वो अर्थ के अंदर डिसिपेट हो जाएगा, चले जाएगा, वेस्ट हो गया वो, समझो, ओके। तो जो समझो आपका जो सॉकेट होता है घर पे, सी सॉकेट लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। जैसे सॉकेट होता है आपके घर पे, उसमें 5 होल होते हैं ऐसे। सो दिस वन इज लाइव, दिस इज न्यूट्रल। ये भी लाइव न्यूट्रल ही होता है, दोनों सेम होते हैं ये, ठीक है। और ये जो ऊपर बड़ा वाला होल होता है, दैट इज अर्थ, दैट इज अर्थिंग। तो छोटे छोटे अप्लायंस में अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे समझो आपके फोन का चार्जर है, तो आपके फोन के चार्जर में 2 ही पिंस होते हैं, लाइव एंड न्यूट्रल, 2 पिंस होते हैं, ठीक है। अर्थ नहीं होता कभी कभी। लेकिन जो बड़े अप्लायंस होते हैं, फॉर एग्जांपल योर वॉशिंग मशीन और योर एयर कंडीशनर और योर रेफ्रिजरेटर, ओवन, उन सब में 3 पॉइंट्स होते हैं, अर्थ भी होता है और प्लस लाइव न्यूट्रल होता है। 3 का कनेक्शन होता है, ऐसे 3 के कनेक्शन होंगे और इट विल गेट फिक्स्ड इन योर सॉकेट, ओके। छोटे छोटे अप्लायंस में चलता है। लैपटॉप का भी आपके 3 वायर, 3 कनेक्शन होता है, अर्थ भी होता है उसमें, बिकॉज थोड़ा हाई वोल्टेज पे काम करते हैं वो, ओके। हर अप्लायंस का खुद का पावर रेटिंग होता है। पावर रेटिंग, पावर रेटिंग मतलब वो अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करता है, कितने टाइम में, उस अप्लायंस के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे आपके समझो घर पे आयरन है, ठीक है, आपके घर पे ओवन है, आपके घर पे फैन है, ट्यूबलाइट है, सब पे लिखा हुआ होता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट विल कंज्यूम इन 1 आवर, ओके। तो वो उस पे लिखा हुआ होता है। कैसे लिखा हुआ होता है? इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है, आई विल टेल यू। मतलब इसका मतलब क्या है? समझो अगर ऐसा लिखा है उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अप्लायंस है, इट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट्स। मतलब आपके घर पे जो 220 वोल्ट्स आता है, उस पे वो चलेगा अप्लायंस, ठीक है। एंड इट विल कंज्यूम 100 वॉट। इट विल कंज्यूम 100 वॉट मींस it will consume 100 joules of energy in 1 second.
it will consume 100 joules of energy in 1 second. ठीक है, इस तरह से वो पावर कंज्यूम करता है आपका अप्लायंस. कोई अप्लायंस 50 वॉट का हो सकता है, कोई 25 वॉट का, कोई 500 वॉट का, डिपेंड्स ऑन द अप्लायंस. Okay, now there are numericals also based on this in your book. So numericals we'll do it later. Now there are some, you should be very careful also with electricity. There are some dangers with electricity, hazards. डेंजर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने चाहिए, क्या क्या डेंजर्स है इलेक्ट्रिसिटी के. सी, आपको सबसे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, तो इससे ओवरलोडिंग हो सकता है. ठीक है, ओवरलोडिंग हो सकता है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो सकता है. सी, इसीलिए इफ यू माइट नो द मीटर, द चार्जेस फॉर कमर्शियल शॉप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर कमर्शियल एंड फॉर रेसिडेंशियल इज डिफरेंट. अगर आप कमर्शियल एरिया में हो, ठीक है, आपकी एक शॉप है, तो उसका बिल ज्यादा आएगा हमेशा. और आप एक नॉर्मल जगह पे हो, आपके घर में हो, तो उसका बिल कम आता है. बिकॉज कमर्शियल को अलग टैक्स लगता है एंड रेसिडेंशियल को अलग लगता है. कमर्शियल में जो कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल इन अ शॉप, अगर आप एयर कंडीशन है तो वो पूरा दिन एयर कंडीशन ऑन रहेगा. ठीक है, तो वो ज्यादा लोड लेगा, तो उसको उस तरह से बनाते हैं. बट घर में आप एयर कंडीशन को 2-3 घंटे के लिए ऑन करोगे, ठीक है, तो वो इतना लोड नहीं लेता. तो इस तरह से जो अप्लायंसेज है, जो सिस्टम है, वो सबके लिए अलग अलग होता है. ओके, फिर अगर आपका जो वायर्स है, अगर उसका प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, तो अगर आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट ऑल द वायर्स व्हिच आर देयर इन योर हाउसेस आर प्रॉपर्ली इंसुलेटेड. ओके, कहीं पे कोई ओपन वायर नहीं है. ओके, फिर अगर आपके हाथ वेट है, गीले है, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम टचिंग द स्विचेस, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो करंट वहां स्विच से आ रहा है, वो उस वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में घुस सकता है. ठीक है, एंटर कर सकता है. तो इसीलिए वाटर फॉर्म्स ए लेयर of connectivity between the switch and you. So wet hands should be avoided. Okay. फिर कभी आपके घर पे अगर कोई वायर्स है तो उसको सीजर से कट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सीजर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल. उस वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी तो वो सीजर से आपको लग सकती है. ठीक है, तो सीजर से कट नहीं कर सकते उसे. एक स्पेशल टाइप के क्लिप आते हैं जिससे हम उसे कट कर सकते हैं. ओके, और हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. सी, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप घर पे नहीं हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट्स, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री who do not get 24 hours electricity. What 24 hours? They don't even get 8 hours of electricity in a day. So for them, we should try to conserve as much as electricity, and it is beneficial for us also, because हमारा भी लाइट का बिल कम आएगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करेंगे तो. ठीक है, ऑलवेज चूज अप्लायंसेस विच आर एनर्जी सेविंग. जैसे आप एलईडी लाइट्स लगा रहे हो घर पे, तो दे आर एनर्जी सेविंग, दे आर गुड. ठीक है, तो आपको वैसी चीजें यूज करनी चाहिए, वैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए जहाँ पे यू कैन सेव एज मच एज पॉसिबल. ओके, then this was the first part. The next part is about the static electricity. Yes, the scissors जिसका हैंडल प्लास्टिक के बने हुए हैं, yes they are insulated, but metal के scissors भी होते हैं जो टेलरिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं. they are made up of full metal, so that can be a risk, that can pose a risk to you.
Second part is static electricity. It is not a very big part, small part. Static electricity मतलब concepts कम ही है इसमें. Just I'll wait for a minute. We'll start in a minute. Very important. And no one will leave the lecture even for 5 minutes. I have seen all the participants. I have a screenshot of all the participants. Attend the full lecture because the static electricity part is important. We will study about electroscope. You should not miss that. Okay. So I'll start in a minute. I'll just have a glass of water. Okay. So static electricity. Static electricity, we will study about two types of charges. Positive charge and negative charge. Okay, two types of charges, positive charge and negative charge. See, how do charge develop? When we rub two substances with each other, okay, charges gets transferred from one to another. Charges get developed there. You might know about a very small, simple experiment which you have done in school or somewhere, that when you take a plastic scale, okay, a small scale made of plastic, if you rub it on your hair, okay, and if you bring it near a piece of papers, those papers will attract to the plastic scale. Okay, आपने कभी ये ट्राई किया होगा, आप ये ट्राई करना, छोटे छोटे प्लास्टिक, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े लेना, ठीक है, एंड देयर इज अ स्केल, आपकी जो प्लास्टिक की स्केल होती है, ओके, उसको आपके हेयर थोड़े से अगर ऑयली होंगे, just rub it on your hair, that scale, okay, and it bring near the papers, the paper will attract, ऐसे स्केल को वो टच हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे. This experiment is shown in your textbook also. It may be shown in your textbook. Just take a look whether it is there or not. So those papers will attract there. Okay, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि चार्जेस डेवलप हुए इस स्केल के ऊपर. जब इस स्केल को आपने अपने बाल से रब किया, तब चार्जेस डेवलप हुए. Okay, so these type of charges are called as static electricity. इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ओके, स्टैटिक क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज ये चार्जेस स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट के ऊपर.
जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है समझो और पेपर पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, they will go away from each other, positive positive. Okay, and unlike charges means positive negative, they will attract each other. Positive, now positive will attract each other. I'll try to show you that experiment of papers, how the scale can attract the papers. We will see it is possible or not. It happens most of the time. See, here, first of all, can you see some, I've kept some papers here. Wait, it is not visible, I think. Can you see these papers here? Pieces of papers kept on this. Okay. Now we will see that can this scale, if I rub this scale on my head, okay, and I try to bring this scale, this piece of paper, wait. There is too much of light coming here. So here is this papers, okay. I'll try to rub that scale on my head and bring near the papers. Can you see? Can you see these papers coming up? पूरा स्टिक नहीं हो रहे हैं बिकॉज जो चार्जेस डेवलप होते हैं, see these papers are coming up like this, little is happening because ये जो scale है, it is a old scale, not so charge effective. Okay, so this is how, see, they are moving. So this is nothing but when I rub this, see the one paper is still stuck on the scale. So this happens because I am rubbing it and I am developing charges there. And because of these charges, there is static electricity generated. So these type of experiments, I will also share you a YouTube link in the group where they have done the experiment with different things, okay, different objects. They have done this experiment of static electricity. I'll send you the video. Now, they explain this experiment with the help of a glass rod,
See, we take a glass rod. Let's say this is a glass rod. Okay, and this glass rod is both the glass. There are two glass rods. These are the two glass rod. Both the glass rod, let's say this is a glass rod, they are rubbed on silk. Okay, both the glass rods are rubbed on silk and they are brought near to each other. Both have same charges because both are rubbed from silk, so they will repel each other. They will go away from each other. Now I'll take ebonite rods. I'll take two ebonite rods and both the ebonite rods I'll rub on fur. सी जैसे यहाँ पे सिल्क यूज किया था, वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, तो यहाँ से मैं फर पे इसको रब करूंगा, दोनों एबोनाइट रॉड को फर पे रब करूंगा. ओके, एंड व्हेन आई ब्रिंग देम नियर ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर बिकॉज़ बोथ हैव सेम चार्जेस. ओके, बट व्हेन आई टेक वन ग्लास रॉड एंड वन एबोनाइट रॉड, और इन दोनों को अगर मैं नजदीक लाऊंगा, ओके, तो दे हैव डिफरेंट चार्जेस. ग्लास रॉड एंड एबोनाइट रॉड दे हैव डिफरेंट चार्ज. लेट्स से यहाँ पे दोनों के पास प्लस चार्ज था, पॉजिटिव था, तो रिपेल हुआ. यहाँ पे दोनों के पास नेगेटिव चार्ज था तो भी रिपेल हुआ. बट अगर मैं एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड नजदीक लाऊंगा, ठीक है, जिसपे एक पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, एबोनाइट रॉड पे, दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज एबोनाइट, इन दोनों को नजदीक लाऊंगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट चार्ज. This experiment was done to show that like charges repel each other, unlike charges attract each other. Okay, a simple, very simple experiment done. So magnets, if you compare it with magnets के भी somehow ऐसा ही होता है. magnets में plus minus नहीं होता, but magnet में north south होता है. ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसमें भी सेम है कि लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. इन मैग्नेट्स आल्सो सेम थिंग हैपेंस. यस, डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट चार्जेस होते हैं, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, किसी में ज्यादा पॉजिटिव होता है, किसी में कम पॉजिटिव. ठीक है, तो वो डिफरेंस भी चलता है, किसी में बहुत ज्यादा नेगेटिव, किसी में बहुत कम नेगेटिव. दैट डिफरेंस कीप्स ऑन गोइंग. ओके, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो पहले से बिना रब, जब रब आपने अपने रब नहीं किया है किसी सब्सटेंस को, तो वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, बट रब करने में चार्जेस डेवलप होते हैं, इम्बैलेंस होता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है, तो रब करने की वजह से ही चार्जेस डेवलप होते हैं. ओके, now there are two types of substances. Conductors and insulators. Okay, conductors means जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है. क्यों हो सकता है? Because they have free electrons. See, करंट फ्लो का मतलब क्या है? करंट फ्लो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ही करंट फ्लो हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी चीज के अंदर है तो ही उसमें करंट फ्लो हो सकता है. तो कंडक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट insulators doesn't have free electrons, so insulators are bad conductors of electricity. इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती. ओके, बट मेटल से हो सकती है. ओके, यस जना. सो कंडक्टर्स का आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए. कंडक्टर्स, ह्यूमन बॉडी इज आल्सो अ कंडक्टर. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. Salty water is a good conductor of electricity. You know this. Now there are different methods by which you can charge a conductor. मतलब किसी एक चीज को अगर चार्ज करना है. There is a question, how will we know that static electricity is positive or negative? See,
there is a list, there is a table which shows that ये materials के पास अगर आप rub करोगे तो positive होगा, ये material के साथ अगर rub करोगे तो negative होगा. Okay, that list is I guess not there in your book, but there is a list. They have done all the experiments and they have classified everything. That here it is positive, here it is negative. Okay, और या तो फिर भी अगर आपको check करना है तो आप क्या कर सकते हो? Take one positive object whichever you have, okay, and take it near the new substance. अगर वो उसे attract करेगा तो वो new substance negative है, अगर वो repel करेगा तो वो new substance positive है. तो आपके पास कोई एक चीज होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि दूसरे के पास कौन सा चार्ज है. ओके, now there are two ways in which we can charge a conductor. किसी भी चार्ज करने में दो तरीके होते हैं चार्जिंग के, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन. बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन. ओके, कैसे करते हैं इसमें? What is your doubt? Just a second. Where did you see this experiment, Janam? Send me that. I will see and then explain you. I don't know what you are exactly talking about. So send me that. I'll see and let you know. Okay. Now, first let me explain you how you can charge an object by conduction. Okay. Conduction means समझो एक आपके पास object है. आपके पास एक object है which is positively charged. Okay. आपको एक दूसरा conductor है जिसको charge करना है. Okay, समझो ये glass rod है. This is a glass rod. Okay, and it is positively charged. And there is a metal here. There is a metal, and you want to charge this metal. So what you will do? You will just bring this metal near the glass rod. Okay. अब जब इसको नजदीक लाएंगे यहाँ से, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कम है और इसके अंदर चार्ज ज्यादा है. ओके, तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एक्सचेंज होंगे, चार्ज का एक्सचेंज होगा. ओके, एंड slowly this metal will also get positive charge. The metal will also start getting positive charge. Okay. ये हमने टच किया है, इनको कांटेक्ट में लाया है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया है, तब ऐसा हुआ है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. बट इंडक्शन में कांटेक्ट में नहीं लाते. इंडक्शन में वी जस्ट ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट, सिर्फ नजदीक लाते हैं. ठीक है, और चार्जेस पास होना शुरू हो जाते हैं. कैसे होता है वो? लेट्स सी. So there is a glass rod, positively charged. A positively charged glass rod, okay, and then you have a metal. Here you keep a metal on a stand. This metal is kept on a stand.
Now what happens here is that, see, समझो इस मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है पहले इनिशियली, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, सी, हम अगर इस पॉजिटिव को नजदीक लाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ओके, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना यहाँ से, ये सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, सारा नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ गया, ओके, तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया। तो देखो आपने कैसे इस मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज लाया एक साइड में, बाय कीपिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर and by attracting all the negative charge on one side, so the other side became positive without even coming in contact with each other. This is called as induction. अभी आप चाहिए तो इसे यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो और इसे अर्थ में ज्वाइन कर सकते हो, अर्थ, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो यहाँ से अर्थ में चले जाएगा, दैट ऑल्सो यू कैन डू। समझो आपको वापस पूरा नेगेटिव करना है तो आप यहाँ पे से अगर अर्थ ज्वाइन कर दोगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएगा और ये पूरा वापस नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अर्थ कर दिया तो ये सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएगा और ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। Okay, this is how you can change the charge of any object by using this one positive charge glass rod. Now the most important topic in static electricity is the electroscope. Just a second. You have to discuss electroscope now and then something about lightning. Then our chapter is done. $160. Now electroscope are of two types. ठीक है, सेकेंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइप तो एकदम सिंपल है, फर्स्ट टाइप इज अ पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, एकदम बेसिक टाइप है ये, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, एंड सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सेकेंड वन में ज्यादा टाइम देंगे हम, ये पिथ बॉल तो एकदम सिंपल होता है। क्या होता है ये पिथ बॉल? So there is a stand और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे भी टायर बॉल हियर, ओके,
नाउ इस बॉल को हम क्या करते हैं, सी इलेक्ट्रोस्कोप यूज क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कौन सा चार्ज है, क्या उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या उसके पास नेगेटिव चार्ज है या वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप, तो समझो हमने यहाँ पे ये बॉल है, इस बॉल को हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। ओके, एंड नाउ इफ यू वांट टू नो दैट, लेट्स से अब ये मार्कर है, इस मार्कर पे कौन सा चार्ज है, आई वांट टू नो दैट, सो आई विल ब्रिंग दिस मार्कर नियर द बॉल। If the ball does not move, that means this marker is neutral. Okay. If this ball moves away, इस मार्कर के अगर दूर गई, तो दूर कब जाएगी, when like charges repel each other. Okay. तो मतलब इस मार्कर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, and if this ball moves towards the marker, then the marker is negatively charged because unlike charges attract each other. As simple as that. That is all about the pith ball electroscope. Okay. The gold leaf one is more effective. The gold leaf electroscope is more effective. So there is a bottle inside, airtight bottle, gold leaf electroscope में. Okay, तो उसे पूरा ऊपर से बंद करते हैं अच्छे से, airtight रबर वगैरह लगा के, everything is closed properly. Okay, then there is a brass rod, and उस rod पे we are tying like this, we tie two papers, ऐसे दो papers लगाए हुए हैं, उसे gold leaf, gold के बने हुए होते हैं वो, gold leaf, उसे this part is called as gold leaf. Okay, this is how a small setup is looks like. ग्लास का बना हुआ बॉटल होता है ये, ठीक है। ऊपर ये डिस्क होती है, ऊपर एक डिस्क होती है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ ब्रास. whichever object you want to test, whether it is positive or negative, you keep it or you bring it near this disc. And उस brass rod, because it is a metal, तो यहाँ से charges का flow हो सकता है ऊपर नीचे. Okay. Now, when you bring a object here or near the brass disc, this gold leaves, जो ऐसे ये gold leaves है बने हुए, ठीक है, either they will repel like this or they will come close to each other. ठीक है, या तो वो ऐसे ऐसे होंगे, या तो दूर जाएंगे या तो नजदीक आएंगे. ठीक है, that will depend upon the charge of the object you are bringing near. अगर वो नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब this object is neutral. अगर this gold leaves are deflecting, that means the object is either positive or negative charge. अब कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस गोल्ड लीफ विच इज देयर हियर, इस गोल्ड लीफ के ऊपर पहले से ही कोई चार्ज डाल के रखो. ठीक है, समझो आपने इस गोल्ड लीफ के ऊपर डाल दिया पॉजिटिव चार्ज. क्या डाल दिया गोल्ड लीफ के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ इफ यू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट हियर, ओके, और हमें नहीं पता इसका चार्ज कौन सा है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, पर जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाया, ये जो गोल्ड लीफ थे ये और दूर चले गए, ये और दूर चले गए. ठीक है, मतलब ये जो, अगर सिंपल डायग्राम बनाऊं मैं, समझो ये गोल्ड लीफ है ऐसा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाने की वजह से ये गोल्ड लीफ और दूर चले गए ऐसा, फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज था और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अंदर गए, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में ऐड हो गए, मतलब और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हो गया. और अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, इफ बोथ चार्जेस आर सेम एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, तो इट विल फर्दर रिपेल ईच अदर, और रिपेल करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, तो एक दूसरे से और दूर जाएंगे वो चार्जेस जब पॉजिटिव आया तो. ठीक है, और अगर समझो यहाँ से नेगेटिव ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया, तो दिस नेगेटिव ऑब्जेक्ट विल गो हियर, और वो थोड़े से इस पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देगा नेगेटिव.
तो ये गोल्ड लीफ के बीच में का डिस्टेंस कम होगा, इट विल कम नियर टू ईच अदर बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज कम होते जा रहे हैं, जो गोल्ड लीफ ऐसे था इट विल कम क्लोज टू ईच अदर, उसकी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, ओके, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव आया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने गोल्ड लीफ को पॉजिटिव रखा है, ठीक है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट नजदीक लाया, इफ द गोल्ड लीव्स फर्दर गोज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, इफ द गोल्ड लीव्स कम्स क्लोज टू ईच अदर दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, ओके। इस तरह से होता है। आप इस गोल्ड लीफ को नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो, इस गोल्ड लीफ को आप नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ से नेगेटिव बॉडी आ रहा है तो इट विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि और नेगेटिव आ गया तो इट विल रिपेल, बट अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑब्जेक्ट में तो इट विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो दिस विल टेल यू दैट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। This is how a gold leaf electroscope works. Now we will study something about lightning. So the American scientist Benjamin Franklin, he was the one who did an experiment to prove that a huge amount of current, a huge amount of power comes to earth when there is lightning from the clouds. Okay, तो बहुत सारा चार्ज डेवलप होता है ऊपर जब क्लाउड्स एक दूसरे से बर्स्ट होते हैं and there is a lightning, huge amount of energy which comes down. Okay, तो उसने क्या किया था, एक काइट फ्लाई किया था, काइट। ओके, और उस काइट की जो थ्रेड थी उसको मेटल वायर रखा था, मेटल वायर से काइट को फ्लाई किया था, ठीक है, इन एंड वो भी जब काफी लाइटनिंग होने के चांसेस थे। सो तब उसने ऐसे किया कि जब लाइटनिंग हुई तो इस मेटल वायर के थ्रू करंट फ्लो हुआ ह्यूज अमाउंट में, और जहाँ पे ये मेटल वायर कनेक्टेड था वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ। तो ही केम टू नो दैट यस, दिस लाइटनिंग व्हिच इज कमिंग हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट, हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इन इट। Okay, so this is how he came to know and he gave a lot of description of lightning. So lightning has, और बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में a lot of electricity is there. So if you come in contact with the lightning, you may die because our body cannot handle this amount of huge amount of current which is flowing suddenly. Okay, तो इसीलिए क्या होता है बिल्डिंग्स के ऊपर, if there is a building, तो बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा ऐसे एंटीना टाइप रखते हैं मेटल का। सो अगर लाइटनिंग हुई तो फ्रॉम दिस एंटीना, फ्रॉम दिस मेटल विल कैच द लाइटनिंग एंड इसको सीधा अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो सीधा जो लाइटनिंग की एक्स्ट्रा एनर्जी आई है डायरेक्टली वो किसमें जाएगी, अर्थ में जाएगी। तो किसी बिल्डिंग में किसी को इफेक्ट नहीं होगा, टू कीप द बिल्डिंग सेफ। अगर लाइटनिंग हुई है, समझो आपके घर पे या कहीं विलेज में, आपके घर पे, आपके बंगलो पे अगर लाइटनिंग हुई है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड इमीडिएटली गो अंडर अ ट्री, अ बिग ट्री, जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। सारे स्विचेस वगैरह जो भी है वो सब, उन सबको बंद कर देना है, ठीक है, किसी को यूज नहीं करना है, कोई वायर प्लग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देन यू शुड बी अवे फ्रॉम योर बैल्कनीज, योर विंडोज, वहां से लाइटनिंग आपको स्ट्रक करने के चांसेस है। फिर वी शुड गो ऑन अ ओपन ग्राउंड, जहाँ पे आपके आसपास कोई मेटल की चीज नहीं है विच कैन कॉज यू डैमेज। ये जो डिवाइस मैंने आप बताया जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर जो सारी लाइटनिंग को लेगा बिल्डिंग में से और सीधा अर्थ में डाल देगा और बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है।
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इलेक्ट्रोस्कोप का समझने का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप अगर आपको समझ गया है, एक बार शॉर्ट में वापस बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्कोप देखो, ये ऐसे ग्लास बॉटल थी इलेक्ट्रोस्कोप की, ओके, और यहाँ पे रॉड था और इस रॉड के ऊपर गोल्ड लीफ लगाया हुआ है, ठीक है। और समझो गोल्ड लीफ को मैंने पॉजिटिव चार्ज किया। अगर आपने यहाँ पे एक रॉड लाया और रॉड लाने से ये जो गोल्ड लीव्स है ये और दूर हुए मतलब ये और रिपेल हुए। ये और रिपेल कभी होंगे जब ये और पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। सेम चार्ज आया तो वो दूर जाते हैं, सेम चार्ज आएंगे तो वो दूर जाएगा, ओके। तो मतलब अगर ये दूर गया तो अंडरस्टैंड कि जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे भी है, इस ऑब्जेक्ट पे भी है। अगर ये नजदीक आया तो आप समझ लो कि जो चार्ज यहाँ पे है उसका ऑपोजिट चार्ज इधर है, नेगेटिव, okay. So means when the leaf repel means there is same charge on the object, and when the leaf come close to each other means there is opposite charge on object. Remember this, okay. That's it about the electricity chapter. If you have any doubts you can ask me. सर, तो सर मेरा डाउट था कि अगर सर हमने है ना अपने रूलर से किसी को पॉजिटिव किया, रूलर को पॉजिटिव पहले चार्ज दिया, थोड़ा टाइम रुका, फिर उसका चार्ज गया, उसके बाद फिर इसको नेगेटिव। सर रुका पहले। तो सर अगर हमने ना एक रूलर को पहले पॉजिटिव चार्ज किया और उसका चार्ज थोड़ा टाइम के बाद इसको रखा, फिर उसका चार्ज चला गया, तो उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा नेक्स्ट टाइम पे, हो सकता है कैसा? नहीं, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल। ओके सर, तो पहले पॉजिटिव बन सकता है फिर नेगेटिव बन सकता है कभी रूलर? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आपने रब किस पे किया है। ओके सर। और सर हमने ना एक दो पॉजिटिव चार्ज रखे, मतलब एक ज्यादा है पॉजिटिव और एक कम पॉजिटिव है, तो ज्यादा नेगेटिव को ज्यादा पॉजिटिव को पहले अट्रैक्ट होगा क्या कि कम पॉजिटिव का अट्रैक्ट होगा? सर हमने दो ऑब्जेक्ट रखे, एक ज्यादा पॉजिटिव है एक कम पॉजिटिव है, तो जल्दी कौन अट्रैक्ट होगा? मोर पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव।